Good morning students. I am Anjali Singh, Assistant Professor of Pharmacology in RKGIT College of Pharmacy, Ghaziabad. In this lecture, we are going to talk about parasympatholytic drugs or anticholinergic drugs. This is the part of pharmacology. First, BP 404T, unit number 3. So, what is parasympatholytic drugs or anticholinergic drugs? These drugs which will inhibit the effect of acetylcholine. वो सारी drugs जो कि acetylcholine के effect को inhibit करती हैं और पैरासिम्पैथोलाइटिक, लाइटिक मीन्स कट करना, किसी चीज़ के इफेक्ट को कट कर देना. सो दीज ड्रग्स विल कट द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को कट करती हैं या फिर उसको इनहिबिट करती हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल, दीज आर द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म पैरासिम्पैथोलाइटिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. What is anticholinergic drugs? These drugs are also known as the muscarinic receptor antagonist drug, atropinic drug और parasympatholytic. यानी कि ऐसी ड्रग जो कि मस्करैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकती हैं. एट्रोपिन इसकी मेजर ड्रग है, इसलिए इनको एट्रोपिनिक ड्रग भी कहते हैं. पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को ब्लॉक करती हैं. सो कन्वेंशनली द टर्म एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज रिस्ट्रिक्टेड टू विच ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन on autonomic effector and in the CNS exerted through muscarinic receptor. जो हमारा टर्म है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है उन ड्रग के लिए जो कि एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को मस्करैनिक रिसेप्टर के थ्रू ब्लॉक करती हैं. जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड दैट the receptor of acetylcholine, there are two types of receptor, muscarinic receptor and nicotinic receptor. So basically conventionally हम anticholinergic drugs उन drugs को कहते हैं जो कि acetylcholine के effect को muscarinic receptor पे block करती हैं. Now what about nicotinic receptor blocker? So the nicotinic receptor antagonist also block certain action of acetylcholine. They are generally referred to as ganglionic blocker drug और neuromuscular blocker drug. So वो drugs जो कि एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को निकोटिनिक रिसेप्टर पे ब्लॉक करती है उनको हम बोलते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर ड्रग्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स. ये आप आगे जाके पढ़ेंगे अभी. सो बेसिकली द टर्म ऑफ एंटीकोलिनर्जिक इज यूज फॉर द मस्करैनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग. सो now let's discuss about the classification of these drugs. So the primary classification, these drugs primarily classified into three major categories. First category is for natural alkaloid, second category is for the semi-synthetic derivative and third category is for the synthetic compound. In natural alkaloid we have atropine and hyoscine which is also known as scopolamine. In next category for semi-synthetic derivative we have homatropine, atropine methonitrate, hyoscine butyl bromide and so on. In synthetic compound, we have divided these compounds into further subcategory according to the effect of the drug in our body system. For example, in first subcategory we have mydriatic drugs, ऐसी drugs जो pupil के size को control करती हैं. For example, cyclopentolate and tropicamide. In anti-secretory antispasmodic drugs we have two subcategories. First category is for quaternary compound and second category for the tertiary amines. Inside quaternary compounds we have propenthyline and so on. In tertiary amines we have dicyclomine and pyrazipine. In next category we have vesicoselective drug. In vesicoselective drug we have oxybutynine, flavaxolate and so on. And in next category we have anti-Parkinsonian drug. In anti-Parkinsonian category we have procyclidine. So this is the basic or overall classification of the anticholinergic drugs. So we have three major categories and in third categories we have divided we have further divided it into further four subcategories. So what is the mechanism of action of these anticholinergic drugs? So anticholinergic drugs are a class of drug that block the neurotransmitter acetylcholine in the central nervous system or in the peripheral nervous system. So anticholinergic drugs combine reversibly with the muscarinic cholinergic receptor, thus preventing the action of the neurotransmitter on these sites. So basically as you can see in this diagram, this is acetylcholine and this is an anticholinergic drug. So these anticholinergic drugs will bind to this muscarinic receptor and prevent the binding of acetylcholine to this receptor. जब भी कोई anticholinergic drug जो है वो हमारे receptor के साथ में bind हो जाएगी तो ये क्या करेगी, आपकी acetylcholine को उस receptor के साथ में bind नहीं करने देगी and prevent the effect of acetylcholine by this receptor.
Now the pharmacological action. So for the pharmacological action, the prototype drug is atropine. Atropine से हम लोग discuss करते हैं. So the first effect of this anticholinergic drug we'll discussing about is on CNS central nervous system. So prominent effect are seen in organ which normally receive parasympathetic tone, blocks all type of muscarinic receptor. यानी कि जो हमारी ड्रग है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स जो कि मस्करैनिक रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं और एसिटाइल कोलिन के थ्रू इनर्वेट होते हैं, उन सब पे हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स अपना इफेक्ट शो करती हैं. सो एट्रोपिन हैज़ ओवरऑल CNS स्टिमुलेंट एक्शन. अगर हम कंपाइल्ड फॉर्म में कहें तो एट्रोपिन जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे स्टिमुलेंट एक्शन प्रोवाइड करता है. सो एट लो डोजेज, अगर हम एट्रोपिन को लो डोज देते हैं, लो डोज में देते हैं, सो ये हमारे पेरिफेरल इफेक्ट शो करता है. दैट मीन्स कि जब एट्रोपिन को हम लो डोज में देंगे तो ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो उस केस में ये हमें पेरिफेरल इफेक्ट शो करेगा. सो एट्रोपिन स्टिमुलेट मैनी मेडुलरी सेंटर. एट्रोपिन जो है वो हमारे ब्रेन में वेगल सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वेसोमोटर सेंटर, इन सबको रेगुलेट कर सकता है. इन सबको कंट्रोल करके ये हमारे मोशन सिकनेस प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर सकता है हमारी बॉडी में. अगर हम इसकी हाई डोज देते हैं एट्रोपिन की, सो एट हाई डोजेज इट विल कॉज रेस्टलेसनेस. ये रेस्टलेसनेस कॉज करेगा, डिसओरिएंटेशन, हेलुसिनेशन, डिल्यूरियम, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फाइनली कोमा. यानी जैसे जैसे हम इसकी जो डोज है वो इंक्रीज करते जाएंगे, ये हमारे पेशेंट के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करती जाएगी. लो डोजेज में ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं करती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम इसकी डोजेज को इंक्रीज करते जाएंगे, इसका जो इफेक्ट है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू इंक्रीज होता जाएगा. सो द ओवरऑल इफेक्ट इज स्टिमुलेटरी. Next, the effect of atropine on cardiovascular system. So as we have earlier discussed that on heart we have M2 receptor. Heart पे हमारे पास होता है M2 receptor. Okay, and the nature of M2 receptor is GPCR and the protein is GI. If the protein is GI, तो क्या होगा हमारा inhibition of adenyl cyclase pathway. Okay, and if we will inhibit the adenyl cyclase pathway, decrease concentration of calcium ion inside the cell. और अगर सेल के अंदर concentration कम हो जाएगा कैल्शियम आयन का, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो हमारी हार्ट की सेल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, फर्दर वहाँ पे इम्पल्स जनरेशन भी नहीं होगा. सो द हार्ट, द मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन इज tachycardia. It is due to the blockade of M2 receptor on the SA node through which vagal tone is decreased in tone decrease heart rate. तो जो हमारी ड्रग होती है ये क्या करती है, ये आपके M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है. M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो ये सारा का सारा जो पाथवे है आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, और जो M2 रिसेप्टर इफेक्ट शो कर रहा था एसिटाइल कोलिन हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज करने का, वो सारा का सारा जो इफेक्ट है आपका वो रिवर्स हो जाएगा. और एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा था हमारा ब्रेडिकार्डिया, तो एट्रोपिन जस्ट उसका रिवर्स काम करेगा, इट विल प्रोड्यूस टैकीकार्डिया, ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा. नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर, सिंस एसिटाइल कोलिन impulses are not involved in the maintenance of vascular tone. जो एसिटाइल कोलिन होता है इसका हमारे बॉडी के वेस्कुलर टोन को मेंटेन करने में कोई मेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी ये हमारे बीपी को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व नहीं होता है. इनिशियली हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसका जो डिवीज़न होता है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में होता है, इसीलिए ये हमारे ब्लड जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उनको मेजर एरियाज़ में कंट्रोल नहीं करता है. इसीलिए जो आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है उनका हमारे ब्लड प्रेशर पे कोई भी मेजर इफेक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन आइज. नेक्स्ट इफेक्ट है इसका आइज पे. सो एट्रोपिन, टॉपिकल इंस्टिलेशन ऑफ एट्रोपिन कॉजेज मिड्रियासिस, abolition of light reflex and cycloplasia. what is cycloplasia? paralysis of Fillary muscles lasting 7 to 10 days. तो अगर हम एट्रोपिन देते हैं तो एट्रोपिन क्या करता है, मिड्रियासिस कॉज करता है. अगर आपको याद होगा तो एसिटाइल कोलिन मियोसिस कॉज करता था, तो ये जस्ट उसका रिवर्स काम करेगा, ये क्या करेगा, मिड्रियासिस कॉज करेगा. तो एसिटाइल कोलिन क्या करता था, हमारी सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके प्यूपिल के साइज को कम करने का काम करता था. तो ये क्या करेगा, इसके कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा, यानी आपकी सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो आपका जो कंडीशन है वो मियोसिस की जगह कौन सा हो जाएगा, आपका मिड्रियोसिस. तो जस्ट आपको क्या करना है, एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को रिवर्स कर देना है बाय ब्लॉकिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन मस्करैनिक रिसेप्टर. Next effect of the anticholinergic drugs is on smooth muscles. So as we have earlier discussed that on smooth muscles we have M3 receptor. Okay,
The nature of M3 receptor is GPCR and the protein is GQ. So the pathway is IP3 DAG pathway, or we can say intracellular concentration of calcium ion will increase, and whenever the intracellular concentration of calcium ion will increase, there is कॉन्ट्रैक्शन. जहाँ पे भी कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है. क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम आयन होता है वो एक्टिन और मायोसिन फाइबर के लिए एक प्रॉपर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, जिससे वो बेटर कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, बेटर कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करते हैं. तो जब हम एट्रोपिन देते हैं तो एट्रोपिन विल ब्लॉक ऑल M3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. तो जितने भी इफेक्ट हमने एसिटाइल कोलिन के पढ़े थे उन सारे इफेक्ट को जस्ट हम रिवर्स कर लेते हैं. सो एसिटाइल कोलिन क्या करता था, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देगा, तो एट्रोपिन जस्ट उसका रिवर्स काम करेगा, ये इस मूवमेंट को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज होगा. इफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विल डिक्रीज, देयर इज अ कॉन्स्टिपेशन. ओके, एसिटाइल कोलिन will cause bronchoconstriction, so atropine will cause bronchodilation. Just reverse, ये क्या करेगा, with the binding of with binding with the M3 receptor, it will block the M3 receptor and it will cause bronchodilation. Next, atropine has relaxed action on ureter and urinary bladder. Okay, तो हमने देखा था कि acetylcholine क्या कर रहा था. For example, this is your ureter, these are the detrusor muscles, जो आपकी ये surrounding muscles है, these are the detrusor muscles. Acetylcholine will contract these muscles, और इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करा रहा था, वो इस ब्लैडर के अंदर जितना भी यूरिन है उसकी वॉइडिंग करा रहा था, यानी आपके ब्लैडर को एम्प्टी करने में, उसको खाली करने में हेल्प कर रहा था. एट्रोपिन उसका रिवर्स काम करेगा, वो क्या करेगा, इस डेट्रोसर मसल्स को रिलैक्स कर देगा. जब ये आपकी डेट्रोसर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो जो ब्लैडर की एम्प्टिंग हो रही थी वो प्रॉपरली नहीं होगी. ओके, so the next effect of atropine is on glands. So atropine markedly decrease sweating, salivation, tracheobronchial secretion, lacrimal secretion by the blocking of M3 receptor. तो जितना भी हमने acetylcholine, as we have discussed about acetylcholine will increase all types of body secretions, either it may be sweating or salivation or lacrimation. इन सारे secretions को acetylcholine जो होता था वो enhance कर दे रहा था. So atropine is a blocker of muscarinic receptor, so it will inhibit the effect of acetylcholine. So how skin and eyes become dry, because हमारे जितने भी sweating और लैक्रीमेशन के सिक्रेशन हैं वो आपके स्टॉप हो जाएंगे, तो स्किन और आइज जो होंगी वो ड्राई होंगी. स्वेलोइंग में भी डिफिकल्ट, हमारी स्वेलोइंग जो होगी, यानी कि जब हम खाना खा के उसको स्वेलो करने की कोशिश करेंगे तो वो भी डिफिकल्ट हो जाएगी, बिकॉज हमारे सारे सिक्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन ऑन ग्लैंड्स. Next effect of atropine is on body temperature. So atropine will enhance the body temperature. Why? Because it will stop the sweating. और जब स्वेटिंग स्टॉप हो जाएगी तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बैलेंस नहीं रहेगा और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनहेंस हो जाएगा. नेक्स्ट इफेक्ट, नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन इज एट्रोपिन विल एक्ट एज अ माइल्ड एनास्थेटिक. एट्रोपिन जो होता है वो माइल्ड एनास्थेटिक का काम करता है कॉर्निया पे. दीज आर द एट्रोपिन सब्सटीट्यूट. ये आपके एट्रोपिन के सब्सटीट्यूट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन, यानी कि सिक्रेशंस को स्टॉप करने के लिए, स्पाज्म को रिलीव करने के लिए, यानी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और सिक्रेशंस को स्टॉप करने के लिए वी कैन यूज़ क्वाटरनरी कंपाउंड्स. सो दीज ड्रग्स हैव इनकम्प्लीट ओरल एब्जॉर्प्शन. ये प्रॉपरली ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती हैं. पुअर पेनिट्रेशन इन ब्रेन एंड आई, प्रॉपरली इनका पेनिट्रेशन नहीं होता है. एलिमिनेशन इज जनरली स्लोअर, मेजॉरिटी आर लॉन्गर एक्टिंग देन एट्रोपिन. इन सारी ड्रग्स का जो टी हाफ होता है वो एट्रोपिन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, बिकॉज दीज ड्रग्स जो होती हैं ये बहुत धीरे धीरे हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट होती हैं. ओके, have higher nicotinic blocking property. These drugs have higher nicotinic blocking property. At high dose, some degree of neuromuscular blocking effect may be seen. अगर इन ड्रग्स की हम हाई डोज देते हैं तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट भी शो करती हैं. नेक्स्ट वी हैव हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड. सो दिस ड्रग इज यूज फॉर द ईसोफेगल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पास्टिक कंडीशन, यानी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशंस होती हैं उनसे रिलीव करने के लिए हम हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज करते हैं. नेक्स्ट एटोपिन मेथोनाइट्रेट, ये आपके एब्डोमिनल कॉलिक और हाइपर रिएक्टिविटी कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड. सो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज यूज फॉर लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकियल मसल्स पे ये यूज़ किया जाता है इसको फॉर ब्रोंकोडाइलेशन. एज वी हैव ऑलरेडी नोन दैट एसिटाइलकोलिन विल कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. सो दीज आर द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एंड दीज विल कॉज ब्रोंकोडाइलेशन. Next, these drugs will use as the pro-anesthetic medication. So propenthylene will this drug is used for
peptic ulcer and gastritis. So acetylcholine will increase the gastric secretion and atropine will inhibit the gastric secretion. So propenthyline, this drug will inhibit the gastric secretion. So इस वजह से हम इस ड्रग को पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं. Next we have tertiary amines, for example dicyclomine. So dicyclomine has direct smooth muscle relaxant action. ये आपको direct smooth muscle relaxation action provide करता है by blocking of M3 receptor. Next is mydriatics. So atropine is a potent mydriatic but is slow and long lasting action is undesirable for refraction testing. एट्रोपिन को जो होता है ये मिड्रियाटिक इफेक्ट शो करता है, यानी पिपल को डायलेट करके हमारी हेल्प करता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो कि आइज़ के टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है. ओके, सो होमएट्रोपिन हम यूज़ करते हैं. इट इज़ 10 टाइम्स लेस पोटेंट देन एट्रोपिन. एट्रोपिन से कम पोटेंट होता है. साइक्लोपेंटोलेट, ये मिड्रियासिस और साइक्लोप्लीजिया कॉज करता है. ट्रोपिकामाइड, इट हैज़ क्विकेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन, यानी कि इसका बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट इफेक्ट हमारी बॉडी पे प्रोवाइड होता है. सो दीज आर द ड्रग्स विच आर रिलेटेड टू atropine category or anticholinesterase category. Now the uses of detailed uses of these drugs. So anticholinesterase drugs are used for the pre-anesthetic medication. How? When irritant general anesthetics, जब भी हम कोई irritant या फिर irritation cause करने वाला general anesthetic यूज़ करते हैं, were used prior administration of anticholinergics. For example हम atropine यूज़ कर सकते हैं. were imperative to check the increased salivary and tracheobronchial secretion. हमारे जितने भी ट्रैकियोब्रोंकियल और सलाइवरी सिक्रेशंस हैं ड्यूरी एनेस्थीसिया, उनको स्टॉप करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वील यूज़ दीज ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर टू रिड्यूस द गैस्ट्रिक सिक्रेशंस. गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को कम करने के लिए हम इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज ये ड्रग्स हमारी बॉडी के सारे सिक्रेशंस को स्टॉप करती हैं. तो यानी कि ये HCl के सिक्रेशंस को भी स्टॉप करेंगी हमारे स्टमक में, तो हम इसे पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वील यूज़ दिस ड्रग फॉर पल्मोनरी इम्बोलिज्म. पल्मोनरी इम्बोलिज्म इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और एक्यूमुलेशन और ब्लॉकेड एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेड इन पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी में किसी टाइप का ब्लॉकेज हो जाता है जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कंडीशन कहते हैं. उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं. Next use is for antispasmodics. So as we know that acetylcholine will cause contraction of muscles. तो जो हमारी बॉडी में मसल्स होती है उनमें वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, स्पाज्म कॉज करता है. सो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग विल इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड विल प्रोवाइड एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट. स्पाज्म से रिलीव करने का इफेक्ट प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट द यूज ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर इन ब्रोंकियल अस्थमा and asthmatic bronchitis and COPD. So acetylcholine will cause bronchoconstriction, जो कि asthmatic patient के लिए harmful होता है, अस्थमा को उसको फर्दर और उस कंडीशन को वर्स्ट कर देता है. तो उस कंडीशन को क्योर करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जो कि आपकी ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करके ब्रोंकियल अस्थमा में पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट द यूज़ ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इज एज मिड्रियाटिक एंड साइक्लोप्लेजिक ड्रग, यानी कि आपका जो प्यूपिल का साइज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, आइज़ की टेस्टिंग के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज एज कार्डियक वेगोलाइटिक, यानी कि जो वेगल टोन है उसको कट करने के लिए एट्रोपिन इज़ यूजफुल इन काउंटरएक्टिंग ब्रेडिकार्डिया एंड पार्शियल हार्ट ब्लॉक. यानी कि अगर हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो उस कंडीशन को क्योर करने के लिए हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं, क्योंकि एट्रोपिन क्या करता है, M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज फॉर सेंट्रल इफेक्ट. तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर यूज फॉर द पार्किंसोनिज्म एंड मोशन सिकनेस इफेक्ट. मोशन सिकनेस प्रॉपर्टीज ये शो करती हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टू एंटागोनाइज मस्करैनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड पॉइजन. जहाँ पे भी आपको मस्करैनिक पॉइजनिंग का प्रॉब्लम हुआ है, विल डिस्कस अबाउट मस्करैनिक पॉइजनिंग इन नेक्स्ट स्लाइड्स. सो उन केस में भी हम एज एन एंटीडोट एट्रोपिन का यूज़ करते हैं. Next, the side effect and toxicity of these drugs. So side effects are quite common with the use of atropine and its congeners may be overdosing. जब भी हम इनकी ओवरडोजिंग करते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी या फिर उसके साइड इफेक्ट्स हमें मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल बेलाडोना पॉइजनिंग में अकर ड्यू टू ड्रग ओवरडोज और कंजप्शन ऑफ सीड्स ऑफ बेरीज ऑफ बेलाडोना और धतूरा प्लांट. ओके, जहाँ से हमें ये ड्रग मिलती है. तो अगर किसी ने इसका कंजप्शन कर लिया है, इसका ओवरडोजिंग कर लिया है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज होगी. सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस पॉइजनिंग? ड्राई माउथ, जितने भी सिक्रीशंस है वो स्टॉप हो जाएंगे.
डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग टॉकिंग, बिकॉज आपका सलाइवरी सिक्लेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आप खाना जो खा रहे हैं उसको आप स्वेलो नहीं कर पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, बिकॉज आपके माउथ में ड्राइनेस कॉज हो जाएगी, ठीक है, ड्राई फ्लशेज एंड हॉट स्किन, स्वेटिंग कम हो जाएगी, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्पेशली ओवर द फेस एंड नेक, ठीक है, बिकॉज ये जो एरिया होते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इनर्वेट होते हैं, तो इन पे अगर आप काम करेंगे तो आपके सारे सिक्रेशंस अफेक्ट होंगे, फीवर, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन एंड डिक्रीज बाउल साउंड. सो दीज आर द साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ एट्रोपिन. Next, the treatment for this toxicity, if poison has been ingested, gastric lavage should be done with tannic acid, is ineffective in oxidized atropine. Okay, so gastric lavage की condition करेंगे हम लोग इसके treatment को provide करने के लिए. Next, the patient should be kept in the dark white room. कोल्ड स्पॉन्जिंग और आइस बैग्स आर अप्लाइड टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड स्पॉन्ज यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, फाइजोस्टिगमिन देंगे हम पेशेंट को 1 to 3 माइक्रोग्राम सबक्यूटेनियसली और IV टू एंटागोनाइज बोथ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन. फाइजोस्टिगमिन यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग. Next, the contraindication. The contraindication, these drugs will show contraindication in glaucoma patient and the elderly patient for urinary retention, because these drugs will cause urinary retention. तो ये जो हमारे old age के patients होते हैं उसमें ये problem cause कर सकती है. Next, the interaction. So इफ़ वी आर टेकिंग अ ड्रग विद एट्रोपिन, अगर हम एट्रोपिन के साथ में कोई भी दूसरी ड्रग ले रहे हैं, सो एट्रोपिन विल डिलेट द गैस्ट्रिक एम्पटिंग. जो एट्रोपिन है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग के टाइम को, यानी ट्रांजिट टाइम को, कि आपका खाना कितनी देर में आपके इंटेस्टाइन से स्टमक से इंटेस्टाइन में पास होता है, उस टाइम को आपका जो एट्रोपिन होता है वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी जो ड्रग्स होती है उनके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट, एंटा एसिड्स, जो आपके एंटा एसिड्स होते हैं वो भी इंटरफेयर करते हैं विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स. अगर आपने एंटा एसिड्स लिए हुए हैं उसके साथ में आपने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ली हुई हैं, तो एंटा एसिड्स जो है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामिनिक्स, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, phenothiazines and desipramide, Pethidine have anticholinergic property. Additive side effects occur with the atropinic drug. So if we'll take these drugs with the atropine, so these drugs have the minor anticholinergic property, so these drugs will potentiate the effect of atropine in our body. Next, MAO inhibitors interfere with the metabolism of anticholinergic or anti-Parkinsonian drug. So if we are taking the MAO inhibitors, that means monoamino oxidase inhibitors drugs with the atropine, so these two drugs will पास थ्रू द सेम मेटाबॉलिक पाथवे. इन दोनों ड्रग का मेटाबॉलिक पाथवे, जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो सिमिलर है. सो इफ यू आर टेकिंग द एट्रोपिन विद द माओ इनहिबिटर्स, तो दीज ड्रग्स विल पास थ्रू द सेम मेटाबॉलिक पाथवे एंड मे बी माओ इनहिबिटर विल delay the metabolism of atropine, so the duration of atropine in our body will increase, so it will show the side effect. जो atropine है उसका duration of action हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो atropine है वो बहुत धीरे धीरे हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होगा, जिसकी वजह से हमें इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं. These are the references for this lecture. Thank you so much.